Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication, to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform, will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. हेलो, आप कैसे हो? बढ़िया. आशा करता हूँ कि you and your family members all are doing superbly well. Okay, आज हमारा 11th स्टैंडर्ड अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट का जर्नल का चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 3 है, इंडेक्स के हिसाब से थोड़ा आगे जाएगा. ओके, मैं जल्द से ये चैप्टर से कनेक्टेड, हो सकता है कि मैंने आज तक आपको जर्नल का मतलब ही नहीं बताया है. वेल, डोंट वरी, गलती नहीं हुई है, क्योंकि टेक्निकली मैंने जर्नल पढ़ाना शुरू नहीं किया है. अगले लेक्चर में होगा, आज भी नहीं. बिफोर दिस मैंने जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे जर्नल वाउचर, कैश वाउचर, डिफरेंट काइंड ऑफ चेक्स, रिसिप्ट, टैक्स इनवॉइस, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की थी एक एक करके. नेक्स्ट टाइम पे हम जर्नल की स्टार्ट करेंगे. वो कैसे दिखता है, कैसे उसको प्रिपेयर करना है, उसके अंदर क्या क्या लिखा जाना चाहिए, बिकॉज मैं नेक्स्ट टाइम वो स्टार्ट करने वाला हूँ. उसके अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, GST, जो अगर आप भारत देश में रहते हो, इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप मुझसे या कोई भी मुझसे ये कहे, क्या मैंने तो कभी सुना ही नहीं हो सकता. ये डायलॉग तुम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो GST का कॉन्सेप्ट है, जो कायदा है, वो पूरे भारत देश में, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंसेस तक, सारी जगहों पर एप्लीकेबल है. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि, सॉरी, थोड़ी सर्दी. ओके, ये GST है क्या, एंड मैं आपको अकाउंट्स के सब्जेक्ट में क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ. वेरी सिंपली पुट, हर दुकानदार, हम अकाउंट्स करने वाले हैं. यू सी, जब हम कहते हैं अकाउंट्स, हाउ डज द अकाउंट लुक, इट हैज़ टू साइड्स. उस तरफ डेबिट, इस तरफ क्रेडिट. डेबिट का रूल अलग है, क्रेडिट का रूल अलग है. अगर आप पर्सनल अकाउंट हो, और अगर आप रियल अकाउंट हो, अगर आप नॉमिनल अकाउंट हो, तो सबके रूल अलग अलग है. और ये रूल मैंने काफ़ी टाइम पहले आपको ऑलरेडी बता दिया है और यूज़ भी किया है. आने वाले एटलीस्ट 20 लेक्चर्स तक मैं ये रूल आपके लिए दोबारा रिपीट करूंगा, क्योंकि मेरे ऊपर जो आपको दिखता है उसको कहा जाता है जर्नल. Okay, account is what I showed you previously.
This is a journal. It also has a debit and it also has a credit. तो डेबिट क्रेडिट कहोगे, दैट मीन्स दे विल बी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. ओके, बट इसके अंदर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आने वाला है. सो जर्नल के अंदर हम लोग नेक्स्ट टाइम जाएंगे. टुडे ये समझने की और मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा क्या है जीएसटी. आपको या तो वो अच्छे डिटेल में आता है बिकॉज समबडी हैज एक्सप्लेन्ड इट टू यू, या आपको क्या करना है यार मुझको, ऐसा कैजुअल एटीट्यूड आपका हो सकता है. बट होता क्या है ना, आपके माँ बाप ओके या कुछ दुकानदार या काफ़ी दुकानदार बराबर, जिनके ऊपर जीएसटी का बड़ा प्रकोप है, व्हाट डज दैट मीन, असर है बराबर, उनको बड़ी चिंता सताती है जीएसटी की. हाँ, हाल ही में मैं किसी दर्जी के पास गया था, टेलर बराबर. उन्होंने बोला सर मैं बिल बना रहा हूँ, बट सर ऐसा है मैं उसमें ना अमाउंट नहीं लिख सकता, मैं आपको अंदाज बोल देता हूँ. तो मैं थोड़ा मतलब सरप्राइज हुआ, क्यों भाई लिख दो ना, बाद में गड़बड़ होगा. वो बोल रहा है सर देखो जो मटेरियल मैं लाने वाला हूँ आपके कपड़े सिलाने के लिए, वो मटेरियल थोड़े ही वक्त में उसका जो जीएसटी का रेट है, टैक्स का रेट, वो बढ़ जाएगा. तो सर अगर बढ़ जाएगा तो मुझे भी ज़्यादा चार्ज करना पड़ेगा. सो दुकानदारों पर जीएसटी का काफ़ी असर होता है. सो इफ़ यू आर नॉट अ दुकानदार, इट डजेंट मैटर टू यू. तुम बोलेगा सर मैं तो स्टूडेंट हूँ, इट डजेंट मैटर टू मी. नहीं, ये लेक्चर ख़त्म होने दो, आपको समझ में आ जाएगा कि दुकानदार के लिए वो इतना बड़ा टेंशन की बात नहीं है जितने वो एक कस्टमर के लिए, जो आप हो एज अ स्टूडेंट, एज योर मॉम एंड डैड, एज योर ब्रदर एंड सिस्टर, एज योर नाना नानी, एवरीबडी इज अ कस्टमर. ओके, व्हाट इज जीएसटी? जी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ये 99.99% बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल है. दैट मीन्स 99.99% बिजनेसेस हैव टू पे द सरकार जीएसटी. ओके जी, कब स्टार्ट हुआ था? जीएसटी का एक फंडा है. क्या है वो? वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट. बिफोर जीएसटी के पहले अपने देश में बहुत अलग अलग टाइप के टैक्सेस थे. दुकानदारों को टैक्स से घबराहट होती थी. कौन सा टैक्स? एक्साइज वाला टैक्स, क्योंकि एक टैक्स था जिसका नाम था एक्साइज ड्यूटी. कस्टम वाला टैक्स, वीएटी वैट, वैल्यू एडिड टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, ऑक्ट्रॉय, इतने टैक्सेस. अगर आप एक प्रोडक्ट बनाओ, आज हम में से अगर कोई गाड़ी चलाता है जो पेट्रोल या डीजल पे चलता है, कोई भी आपके फैमिली में या आपके दोस्तों में, आपके परिवार में, तो वो डेफिनेटली एक बार तो कंप्लेन किया होगा, एक बार, यार पेट्रोल का भाव कितना ज़्यादा है. और आपने अगर नहीं सुना तो मैं आज बता देता हूँ कि अगर मार्केट में पेट्रोल 120 या 115 या 116 के लिए मिलता है, पेट्रोल को पेट्रोल बनाने का प्राइस में भी कुछ 40 रुपया रहेगा, 40 रुपया. उसके बाद वो 120 तक कैसे पहुंचता है? टैक्सेस, सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स, डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन, ये वो इतने टैक्सेस लगते हैं कि 3 गुना ज़्यादा उसका प्राइस इंक्रीज होता है. सो आप समझ सकते हो हाउ इंपॉर्टेंट रोल डू दीज टैक्सेस प्ले. अगर ये टैक्सेस को हम हटा दें, आप में से कुछ लोग ने ये सोचा रहेगा सर क्या बवाल है, टैक्स को निकाल दो, इतना सस्ता हो जाएगा पेट्रोल. नहीं जी, टैक्स के बेसिस पर हमारा ये पूरा देश चलता है. प्लीज़ याद रखिए, ये कोई सऊदी की कंट्री नहीं है जहाँ पर एक राजा है और राजा अपनी जेब से रास्ते का कंस्ट्रक्शन करता है, फ्लाईओवर्स का कंस्ट्रक्शन करता है, स्कूल्स का कंस्ट्रक्शन करता है, शॉपिंग मॉल का कंस्ट्रक्शन करता है, गार्डन्स का कंस्ट्रक्शन करता है, पब्लिक हेल्थ के बारे में, आर्मी नेवी राजा करता है. हमारे यहाँ पे राजा का ज़माना नहीं है. इट्स अ डेमोक्रेसी. व्हाट्स अ डेमोक्रेसी? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल. ओके, कभी सुना रहेगा आपने.
So we have a system where there are elections conducted, we elect representatives, लीडर्स बनते हैं, एमपीज बनते हैं और उसके बाद में पार्लियामेंट बनता है और एक कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी या तो अकेले या तो कॉम्बिनेशन में सरकार बनाती है। उनके ऊपर ये जिम्मेदारी डाली जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ये देश को चलाओ। मैं मेरे घर का देखता हूँ, बट मेरे घर के बाहर साफ सफाई, हमारे देश की साफ सफाई, हमारे शहर की साफ सफाई, हमारे देश का रख रखाव, पुलिस डिपार्टमेंट, आर्मी, नेवी, वो सरकार आप देखो। सरकार बोलेगी पैसा कहाँ से आएगा? अरे हम आपको टैक्स देते हैं ना। तो जीएसटी इज द टैक्स विच पीपल लाइक यू एंड मी, आप और मैं, सरकार को देते हैं और सरकार वो खर्चा करती है हमारे इस पूरे देश को चलाने में। ओके, तो ये सिंपल फंडा है जीएसटी का, जो ऑब्वियसली हम सभी को देना है। मैंने कहा 99.99%। कुछ ऐसे दुकानदार हैं जो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को बेचते हैं जिसके ऊपर जीएसटी लागू नहीं करता। प्लीज अंडरस्टैंड, जीएसटी रेट्स में चलता है। यहां पर एक डायलॉग था, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। अ कंट्री, इंडिया, भारत देश बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और उसके अंदर सारे सीजन्स आते हैं, बराबर, विंटर सीजन, समर सीजन, उसके अंदर इतनी वेराइटी है। ओके, सो यू मे हैव प्लेटो, यू मे हैव रिवर्स, यू मे हैव माउंटेन्स, मतलब इतनी वैरायटी अपने देश में है। तो दुकानदार बहुत अलग अलग वैरायटी की चीज़ें बेचते हैं। जो केरला में बिकता है वो गुजरात में नहीं बिकता, जो गुजरात में बिकता है वो उत्तराखंड में नहीं बिकता, जो उत्तराखंड में बिकता है वो मिजोरम में नहीं बिकता। तो हर जगह की अपनी खास बात है। एवरी शॉप इन एवरी एरिया ऑफ इंडिया इज अ लिटिल डिफरेंट, थोड़ा अलग है। देयरफॉर कौन क्या बेचता है, जीएसटी की एक काउंसिल बैठाई जाती है, बराबर। काउंसिल में ना जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, जिनके अंदर चतुराई है, विजडम है, ज्ञान है, वो लोगों ने अच्छा स्टडी किया है और उन लोगों ने एक लिस्ट बनाया है और उन्होंने ये सभी को डिक्लेयर किया है। देखो भाई, भारत देश में अगर आपका एक दुकान है और आप ये चीज़ें बेचते हो या आप उसको मैन्युफैक्चर करते हो, आप उसको बनाते हो, उसका उत्पादन करते हो, फिर उसको बेचते हो, तो आप प्लीज़ इस कैटेगरी को देखो। और इस कैटेगरी के अंदर पहला कैटेगरी होता है एसेंशियल कमोडिटीज, मतलब ये ज़रूरत की चीज़ें हैं। इसके ऊपर जीएसटी है ज़ीरो, कोई जीएसटी नहीं है। ओके, प्लीज़ अंडरस्टैंड, मैं बात कर रहा हूँ गुड्स एंड सर्विस, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। इफ़ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस टिल नाउ, गुड्स का मतलब क्या है कि सर मैं दुकान में गया, मैंने एक बुक खरीदा, मैं दुकान में गया, मैंने एक आइसक्रीम खरीदा, मैं दुकान में गया, मैंने एक टी शर्ट खरीदा, दैट इज़ गुड्स। सर मैं दुकान में गया और मेरा मेकअप किया गया, दैट इज़ सर्विसेज, बराबर। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। मैं एडवोकेट के पास गया, मुझे लीगल ओपिनियन चाहिए था, सर्विसेज। तो देर आर टू डिफरेंट थिंग्स। एज अ कस्टमर आप जाके लेते हो, आप जाके कभी प्रोडक्ट लेते हो मतलब गुड्स, या आप जाके किसी की सर्विस लेते हो, बराबर। ओके, इंटरनेट पे काफ़ी ऐसी कंपनियां हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। कौन सी सर्विसेज? कि अगर आपके घर पे कारपेंटर का काम है तो वो कारपेंटर को और कारपेंटर की अपॉइंटमेंट आपके साथ में कनेक्ट करेंगे। तो वो आपको सर्विस दे रहे हैं कि आपके घर पे कारपेंटर आएगा, प्लम्बर आएगा, इलेक्ट्रिशियन आएगा, तो वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो कुछ ऐसे गुड्स है और सर्विसेज जिस पे वो काउंसिल जो है, जीएसटी काउंसिल, पढ़े लिखे लोग, उन्होंने बोला जीएसटी है ही नहीं, 0%। अभी इसके बाद कुछ चीज़ों पे 5% का जीएसटी लागू है। दैट मीन्स जो भी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है उसके ऊपर 5% जीएसटी कैलकुलेट होता है। कुछ प्रोडक्ट्स पे 12% है, आगे जाए हम, कुछ प्रोडक्ट्स पे 18% है, 12% रिपीटेड है, और कुछ प्रोडक्ट्स पे 28% है। राइट नाउ हमारे देश में जीएसटी जो सबसे महंगा और हाईएस्ट कैलकुलेशन है वो 28% का है और सबसे कम ज़ीरो। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड, मेरा जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे जो लिखा गया है उसके आधार पे, उसके बेस्ड पे दे रहा हूँ, बट लास्ट में एक डायलॉग लिखा गया है।
What is that? The rates and types of GST are prescribed by the government. गवर्नमेंट ने बोला ये 5% तो 5%, ये 12 तो ये 12, ये 18 तो ये 18, ये 28 तो ये 28. GST rates are subject to change. Very very important. कि what you see right now, ये जो लिस्ट है ना, please don't by heart it. It's of no use. GST is a very dynamic thing. What does that mean? बड़ी नई चीज है, या तो नई नई होती रहती है, बदलती रहती है. Because right now there are different taxes. 5%, 12%, 8%, 18%, 28%. स्टिल क्या है? पब्लिक कंफ्यूज्ड है, दुकानदार गुस्से है, कंफ्यूज्ड है. तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, ये जो रेट है ना, अलग अलग रेट, हम इसको कम कर देंगे. एग्जाम्पल, उन्होंने बोला है हम 18% को निकाल देंगे. अगर 18% निकल गया तो उसके अंदर जो सामान है, गुड्स एंड सर्विसेज, वो या तो 12.5 पे चला जाएगा या तो 28 पे आ जाएगा. मीनिंग दैट इज कंटिन्यूअसली हैपनिंग एवरी ईयर, एवरी 6 months, एवरी 3 months इनका मीटिंग होता है. और वो लोग क्या करते हैं, उन लोग थिंक करते हैं कि क्या चल रहा है, इसके अंदर क्या गड़बड़ है, इसके अंदर क्या. जैसे आपके स्मार्टफोन में ऐप होता है ना, उसका नया वर्जन आता है इम्प्रूव्ड, और नया वर्जन आता है इम्प्रूव्ड. उसी तरह ये जो जीएसटी का एक्सप्लेनेशन है, उसका नया वर्जन आता है, इम्प्रूव्ड इम्प्रूव्ड इम्प्रूव्ड, सिंपलर सिंपलर सिंपलर. तो इसको बाय हार्ट मत करो, इसको बस अंडरस्टैंड करो. हाँ, सर ने बोला कि भाई हमारे देश में हर दुकानदार को, ऑलमोस्ट हर दुकानदार को जीएसटी देना पड़ता है. जीएसटी कभी कभी 0 होता है, बट कभी कभी 12, 18, 5 या 28% हो सकता है. और ये जो परसेंटेजेस है ये बदलते रहते हैं, और ये परसेंटेजेस के अंदर जो लिखा गया है वो भी बदलते रहता है. थोड़ा आइडिया ले लेते हैं कि 0% के अंदर क्या आता है. आप थोड़ा अगर पढ़ो ना, एसेंशियल कमोडिटीज, मतलब जीने मरने के लिए जो रोटी कपड़ा मकान लगता है ना, फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, सॉल्ट, अर्दन पॉट, मटका, मतलब जो फल आप बाजार से खरीदते हो, जो अनाज आप बाजार से खरीदते हो, जो भाजी आप बाजार से खरीदते हो, जो दूध आप बाजार से खरीदते हो, कोई जीएसटी नहीं है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है. क्योंकि सरकार का ऐसा कहना है कि नहीं, ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, इसके ऊपर हम टैक्स लगा के इसको हम महंगा नहीं करना चाहते हैं. उसके बाद सर्विसेज में क्या आता है, चैरिटेबल ट्रस्ट एक्टिविटीज़. ओके, व्हाट डज दैट मीन. देखिए, काफ़ी ऐसे ट्रस्ट है, ओके, जो चैरिटेबल है, मतलब वो अच्छा काम करते हैं. जो बूढ़े हैं उनके लिए उन्होंने ओल्ड एज होम बनाया है, या जिनको खाना नहीं मिलता, हर दिन पे वो फ्री का खाना उनको देते हैं, तो ये भी वो सर्विस दे रहे हैं. बट उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली ना, अच्छा काम कर रहे हैं, भला काम कर रहे हैं. ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, तो अगर आपकी बिल्डिंग में टैंकर से पानी आता है, या आपके जगह पर पानी कम है और टैंकर से आता है, तो उसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं है. यूज़ ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस, पब्लिक लाइब्रेरी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जो भी होते हैं ना, जो खेती बाड़ी से कनेक्टेड है, उसके ऊपर भी किसी भी तरीके का जीएसटी होता नहीं है. ये थोड़ा आइडिया में दे रहा हूँ. मैं आपको थोड़ा एक लंबा लिस्ट बता देता हूँ. हाँ, तो मेरे पीछे आप जो भी देख रहे हो, ओके, तो एक लंबी लिस्ट है कि अगर ये गुड्स का आप डीलिंग करते हो तो इसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं है, क्योंकि ये लिस्ट है एग्जेम्प्टेड गुड्स का. एग्जेम्प्टेड का मतलब जिसको छूट है, माफ़ी है, ओके, और उसके ऊपर जो रेट है वो 0% का है. लंबा सा लिस्ट है, अगेन बायात मत कीजिए, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि भाई ये जो चीज़ें मेरे पीछे आपको एक एक करके दिख रही है, ओके, इसके अंदर फल फूल, जो जानवर है, ओके, वो सारी चीज़ें मेरे पीछे, ये नारियल का पानी है, ऊपर का जैगरी है, ओके, उसके ऊपर बीटल लीव्स है, या ग्राउंडनट के सीड्स है. अगर आप अगस्त 15 के पहले नेशनल मूड में आके आप झंडे बनाओ और वो बेचो, तो उसके ऊपर भी कोई जीएसटी होता नहीं है. नमक के ऊपर कोई जीएसटी होता
नहीं है। जो सिंदूर लगाया जाता है उसके ऊपर कोई जीएसटी होता नहीं है। जो गांधी टोपी होती है उसके ऊपर अगर उसकी बिक्री होती है उसके ऊपर कोई क्या कहते हैं जीएसटी होता नहीं है। जो अखबार बेचे जाते हैं, जो किताबें बेचे जाते हैं, इसके ऊपर भी किसी भी तरीके का जीएसटी होता नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें जो लोग कम सुनाई देते हैं अगर अपने कान में लगाते हैं, ओके, तो वो जो इक्विपमेंट है उसके ऊपर भी जीएसटी होता नहीं है। पूजा का जो सामान है, ओके, उसके ऊपर सामग्री है, स्लेट जो होता है या जो भी हमारे स्पेस एरोनॉटिकल प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है, जो हैंडलूम्स से जुड़ा हुआ है, जो खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें अगेन आप सिर्फ सुन लो, आपको प्लीज़ ये बिल्कुल ही बाय हार्ट नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें नो जीएसटी, लंबी लिस्ट है और ये लिस्ट बढ़ती भी है, कम भी होती है। अच्छा, फिर 5% में आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से क्या आता है, क्योंकि इसके अंदर चेंजेस हो चुके हैं। जैसे ये टेक्स्ट बुक बदल जाएगा तो ये लिस्ट भी बदल जाएगा, वो भी अपडेट हो जाएगा। अच्छा, गुड्स में सिलेंडर, हम में से लगभग सभी के घरों में सिलेंडर आता है। चाय, कॉफ़ी, हनी, फ्रोज़न वेजिटेबल्स, वो जो फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं होते, जो पैक किए जाते हैं, अच्छा, टिन के अंदर, तो उसके ऊपर 5%। सर्विसेज में रेलवे का ट्रांसपोर्ट, बस ट्रांसपोर्ट, टैक्सी की सर्विसेज, इसके ऊपर 5% का जीएसटी होता है। अगेन सिर्फ सुन लो और समझ लो, बाकी कोई भी चीज़ बाय हार्ट नहीं करना। 12% के रेट में क्या आता है जी, घी और बटर और ड्राई फ्रूट, जैम। अगेन ना ये लिस्ट गिनी चुनी लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट होती है। आपको वो सब, सबसे इम्पोर्टेंट मोबाइल फ़ोन, बट ये बदलते रहता है, ये बदलते रहता है। मोबाइल फ़ोन कभी 12% में हो सकता है, कभी 18% में जा सकता है, ये बदलते रहता है। सर्विसेज के अंदर प्रिंटिंग का कोई जॉब हो, गेस्ट हाउस, कंस्ट्रक्शन के बिजनेसेस के साथ में कोई भी काम हो, तो वो 12% के अंदर होता है, ओके। उसके अलावा 18% के अंदर बहुत सारे चीज़ें आती है। ग्रेनाइट की जो पत्थर होते हैं, परफ्यूम्स होते हैं, मेटल आइटम्स होते हैं, कंप्यूटर, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब पे 18% का जीएसटी लगता है, एटलीस्ट ये वाले टेक्स्ट बुक के जानकारी के हिसाब से। कुरियर की सर्विसेज, केटरिंग का सर्विस, सर्कस, ड्रामा, एग्जीबिशंस, ब्रोकर के जो एजेंट होते हैं ना, उनका 18% का सर्विस रहता है। और जो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा जो 28% का टैक्स लगता है, वो सरकार ने या तो महंगी चीज़ों के ऊपर, क्योंकि वो सिर्फ सोच में ऐसा है कि जो लोग लग्जरी चीज़ें चाहते हैं, महंगी महंगी गाड़ियाँ, महंगे महंगे हॉलीडेज़, अच्छा, उनके ऊपर 28% का टैक्स लगता है। और वो चीज़ें जो अपनी सेहत के लिए ख़राब है, मतलब पान मसाला, ओके, ये टोबैको प्रोडक्ट्स, ये चीज़ें अपनी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, तो सरकार उसको महंगा करती है ताकि ये महंगी हो जाए और ये एक डिस्करेजमेंट हो लोगों को ये चीज़ें खरीदने से। अच्छा, तो मेरे पीछे थीम पार्क, कैसीनोज, आईपीएल गेम्स, एयर ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें लग्जरी कही जाती है और इसके ऊपर 28% का टैक्स रहता है। दिस इज़ जस्ट अ डिस्क्रिप्शन। देखो भाई, ये जीएसटी है, ये रेट होते हैं और ये रेट का कैलकुलेशन करना ज़रूरी है, जो हमको हमारे चैप्टर में आगे जाकर अगली बार से करना है, ओके। आपको रेट आपके टेक्स्ट बुक में, आपके क्वेश्चन में हमेशा दिया जाएगा, तो टेंशन मत लो सर मुझे याद करना पड़ेगा कि 5% की लिस्ट में क्या है, 12 में क्या है, 18 में क्या है, 28 में क्या है, 0 में क्या है। नहीं नहीं नहीं, आपको वो बोलेगी ये 18% का है, ये 28 का है, ये 12 का है। टेंशन ना लो, सिस्टम समझो। सिस्टम, अगर आप दुकानदार हो, सेलर बराबर, और महाराष्ट्र में, हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, और एक कस्टमर आपके पास में आता है, बायर, तो आई रिपीट, आपका काम है, आप एक दुकानदार हो, कि कस्टमर से आप जीएसटी की वसूली करो, क्योंकि आपको बिल में लिखना है। देखो, कस्टमर आपका मोबाइल इतना, जीएसटी इतना, तो कस्टमर आपको जीएसटी के साथ पैसे देगा। तो वेरी सिंपल डालता हूं मैं, लंबा स्टोरी नहीं बनाता। यू आर अ शॉपकीपर, कस्टमर को जब बिल बनाया जाता है उसमें जीएसटी होता है, तो कस्टमर विल पे यू द जीएसटी। आप अपनी जेब में नहीं रख सकते, आपको ये जीएसटी को बांटना है। क्यों? क्योंकि हमारा देश को चलाने की जिम्मेदारी अलग गवर्नमेंट के पास है, जिसको कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, जो दिल्ली में है, और आपके प्रांत को, आपके स्टेट को चलाने की जिम्मेदारी, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार जो होती है स्टेट गवर्नमेंट, तो एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट।
आप जो जीएसटी लेते हो उसको आपको टुकड़े में, 2 टुकड़े में करना है, और एक टुकड़ा चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जिसको कहते हैं सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और वही टुकड़ा बाकी का चला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। बिकॉज अगर महाराष्ट्र स्टेट के अंदर प्रोग्रेस लाना है, डेवलपमेंट लाना है, तो वो महाराष्ट्र स्टेट की जिम्मेदारी है। महाराष्ट्र स्टेट कश्मीर के बॉर्डर पर क्या हो रहा है वो सोच नहीं सकती है क्योंकि वो बहुत दूर है, तो वो हमारे सेंट्रल की ज़रूरत बन जाती है। जो हमारी गवर्नमेंट है, सरकार है, जो हमारी सरकार बनाती है, अच्छा, उनको सोचना पड़ता है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, ओके, उनको सोचना पड़ता है। तो जो जीएसटी कस्टमर से लिया जाता है उसको 2 हिस्सों में बांटा जाता है, बराबर। अगर जीएसटी 18% है तो 9, 28% है तो 14, बराबर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। 12% है तो 6 और 6, 6% आप रखो सेंट्रल, 6% आप रखो, 14% आप रखो, 14% आप रखो, दोनों खुश रहो, दोनों अपना अपना काम करो। प्लीज अंडरस्टैंड, जीएसटी की जिम्मेदारी ये डाली गई है दुकानदार पर। सरकार दुकानदार को पकड़ती है, जीएसटी दो, बट अपनी जेब से दुकानदार को नहीं देना, दुकानदार को लेना है ये ग्राहक से। ग्राहक कौन है, कस्टमर कौन है? आप और मैं जो दुकान में जाते हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप स्टूडेंट और आप बोलते हो मुझको क्या करना है जीएसटी के साथ में, अरे भाई आप जीएसटी देते हो, इतनी जो चीजें मैंने बताई है ना, आप नहीं खरीदते, कभी ना कभी तो होता रहेगा, आप जीएसटी देते हो, तो प्लीज आपको अंडरस्टैंड तो करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भैया कितना जीएसटी दे रहे हो, बिल में देखना, क्लियरली उसको बताया जाता है। तो ये सिस्टम है जीएसटी का, और अकाउंट्स में हम ये है दुकानदार, तो ऑब्वियसली ना हमको ये ढूंढना पड़ेगा कि भैया कितना जीएसटी। ओके, थोड़ा और मैं आपको समझाता हूँ जीएसटी के बारे में। जीएसटी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट। इनपुट का मतलब क्या? अगर दुकान कोई भी चीज खरीदता है तो अगर आप ये देखो, ये क्या है, ये सप्लायर है जो माल दुकानदार को देता है, ये हमारा दुकान शॉप लिखा है ना, तो माल खरीदता है, उसको इनपुट कहते हैं क्योंकि वो इन आ रहा है। जेरोक्स मशीन ऑफिस में रखते रहेंगे ताकि जेरोक्स की जरूरत पड़ती है, तो वो भी हमने खरीदा, इनपुट। गाड़ी ऐसी लैम्बोर्गिनी तो नहीं, बट नॉर्मल गाड़ी या बाइक डिलीवरी के लिए, वो भी इनपुट। और कोई मशीन रहेगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो भी इनपुट। ये सारी चीजें इनपुट है। तो जो भी इनपुट होता है, बराबर, जिसकी मदद से, अगर आप एक सैंडविच वाले के पास जाओ और उसको बोलो भैया जी मुझको एक टोस्ट सैंडविच चाहिए, मसाला टोस्ट सैंडविच चाहिए, तो उसके पास में एक मशीन है जिसमें वो सैंडविच डालता है और वो अच्छे से क्रिस्पी होके बाहर आ जाता है। आपको ये समझना है कि वो टोस्ट सैंडविच की मशीन क्या है, इनपुट। उसके बगैर आउटपुट बन नहीं सकता। तो जो भी एक कंपनी में इस्तेमाल किया जाता है, वो कंप्यूटर्स रहेंगे, लैपटॉप्स रहेंगे, मशीनरी रहेंगे, ये सारी चीज़ें इनपुट होती है उनके लिए। उसके ऊपर होता है इनपुट जीएसटी, ओके। और जब चीज़ें बेची जाती है तो दुकान के बाहर जाती है, कस्टमर के पास जाती है। कुछ भी चीज़ आप बेच सकते हो, बराबर। प्रोडक्ट्स बेचोगे, जूनी गाड़ी हो गई उसको बेच दोगे, जूना जेरोक्स मशीन हो गया उसको बेच दोगे, जूनी मशीन होगी उसको बेच दोगे। उसके ऊपर होता है आउटपुट जीएसटी। सो अ शॉप, एक दुकान, 2 ही चीजें करता है, खरीदो बेचो, खरीदो बेचो। जीएसटी की भाषा में जो खरीदा जाता है उसको इनपुट कहा जाता है, जो बेचा जाता है उसको आउटपुट। तीसरी कोई चीज दुकानदार करता नहीं है। आप दुकानदार हो, सुबह से शाम, सोमवार से शनिवार, अज्यूमिंग संडे को छुट्टी है, क्या करते हो? परचेज सेल, परचेज सेल, परचेज इनपुट और सेल आउटपुट। सो आपको, अगर आप कोई चीज खरीद रहे हो तो इनपुट जीएसटी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और अगर आप कोई चीज बेच रहे हो, आउटपुट जीएसटी। ये जो जीएसटी होता है ये एक नॉमिनल अकाउंट है, प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए। ओके, लेक्चर खत्म करने के पहले सिंपल सा एग्जाम्पल आपको देता हूं। दुकान आपका है, आपने ये फर्नीचर खरीदा,
तो बिल में क्या दिखेगा? फर्नीचर का प्राइस और 2 तरीके के जीएसटी। तो अगर सोचो ये 18% का जीएसटी का कैटेगरी है, तो आपको सीजीएसटी जो इनपुट है वो दिखेगा 9% और एसजीएसटी 9%। ओके, हाँ, मतलब सिर्फ फर्नीचर का प्राइस नहीं रहेगा, प्लस जीएसटी होगा। और अगर आप एक दुकान हो और आप फर्नीचर बेच रहे हो तो फिर वो जा रहा है, तो उसके भी बिल में फर्नीचर का सेलिंग का प्राइस और फिर जो जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा वो रेट हाफ हाफ, बट ये होगा आउटपुट जीएसटी। व्हेन यू बाय समथिंग you will have to calculate input GST, the rate will be given, you don't have to worry about the rate. And when you sell something, you have to calculate output GST. It can and it will be CGST and SGST. एक प्रॉब्लम के अंदर एक बार तो जीएसटी का कैलकुलेशन आएगा, बार बार नहीं आएगा, एक बार। जब भी वो आएगा आपको ये सोचना है क्या ये इनपुट है तो मैं इनपुट जीएसटी कैलकुलेट करता हूँ, क्या ये आउटपुट है तो मैं आउटपुट जीएसटी कैलकुलेट करूंगा। इतना ही आज आपको बताना था, मुझे आपको जानकारी देनी थी, बिकॉज जब मैं नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करूँ और बीच में जीएसटी आए, आपकी गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। आपको पता होना चाहिए, अच्छा जीएसटी आया, मेरे को या तो इनपुट कैलकुलेट करना है या तो आउटपुट कैलकुलेट करना है। इनपुट रहेगा तो 2 वेराइटी, सीजीएसटी एसजीएसटी, आउटपुट रहेगा तो 2 वेराइटी, सीजीएसटी एसजीएसटी। बाकी अगर आपको ज़्यादा कुछ जानना है, गूगल हमेशा कर सकते हो। जीएसटी के ऊपर भरमार इंफॉर्मेशन ऑनलाइन और प्रिंट मीडिया में भी अवेलेबल रहती है, या भाई पिता किसी न किसी से पूछ लेना, वो भी काफ़ी जानकारी आपको दे पाएगी। इतने से आपके अकाउंट्स के सब्जेक्ट की गाड़ी आगे चल जाएगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप हमारे पुराने मित्र हो तो कृपया करके शेयर करें। अगर आप यहाँ पे नए जुड़े हो तो कृपया करके सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे, जब तक हम दोबारा ना मिले, जो बहुत जल्द होगा। अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।